In this video, I have interviewed Raghav Himatsinka. He is the founder of Raising Superstars. He was a part of this show called Shark Tank India, where he has raised a funding of rupees 1 crore for 4% of equity. In this interview, Raghav has shared his experience of Shark Tank India. Being a reality show, is Shark Tank India scripted? How this show helped him not just with the funding but also with its branding. What does Raising Superstars do? He has also shared some advice for young entrepreneurs and some secret sauce to raise funds through Shark Tank India. Welcome Raghav to Startuppedia. Thanks, Jamil. Thanks for having us. Alright, so Raghav, you recently been featured on the Shark Tank India. So tell us about your experience with Shark Tank India. So, Shark Tank India was a absolutely phenomenal experience for us. It was quite fun. It was amazing. And हमने when we were shooting for Shark Tank India, हमने देखा कि Sony team round the clock बहुत मेहनत किया है उन्होंने. It was a very well produced show and इसलिए आजकल Shark Tank India को काफ़ी popularity भी मिला है. But it was a really fun experience and of course हमारे company को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ Shark Tank में आने से. So yeah, it was very positive. All right, cool. So when Shark Tank India started here, there were a lot of criticism about it. So I just want to know, reason being that most of the reality shows in India are scripted, right? So my question is, was Shark Tank India scripted? If yes, then how much? Absolutely not. Absolutely zero. So मतलब इनफैक्ट आप मुझे ये पूछ रहे हो और मुझे किसी ने और भी रिसेंटली पूछा था कि ये स्क्रिप्टेड है क्या, तो पर आप इसका ब्यूटी देखिए कि इतना अच्छा शो उन्होंने प्रोड्यूस किया है कि ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है बट इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, क्योंकि बट जो हम वहाँ जाके बोलते हैं टैंक के अंदर शार्क्स के सामने, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन दैट गोज इनटू इट. तो मतलब हम क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चंस आ सकता है, क्या हम लोग उसका जवाब देंगे, वो सब प्रेपरेशन हमने बहुत किया. पर अंदर जाने के बाद इट इज़ कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड. वी डोंट नो कि वो क्या पूछेंगे. उन्हें नहीं मालूम कि हमारी कंपनी क्या करती है, क्या नंबर्स है. दे ओनली नो आवर कंपनी नेम एंड दे नो द प्रॉप्स, जो कि सेट के अंदर प्रॉप्स हमारा रखा हुआ है, उससे हम कुछ गेस कर सकते हैं. But otherwise, the show is completely unscripted, and it's a surprise for us as well as for the show. Got it. So, apart from raising fund, how did Shark Tank India help you in your startup journey? तो स्पेशली जो हम काम कर रहे हैं, हम आपको मालूम है रेजिंग सुपरस्टार्स इज अ कंपनी जो कि पेरेंट्स को 0 to 2 year old पेरेंट्स को 0 to 2 year old बेबीज के पेरेंट्स को वी गिव एक्टिविटीज टू सॉर्ट ऑफ awaken unleash their baby's full potential, right? तो जो हम काम करते हैं वो ऐसा लगता है कि यार ये जो आप बोल रहे हो ये सही में होगा कि नहीं होगा, ये इसमें विश्वास कर सकते हैं क्या, आप मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे, कैन आई ट्रस्ट यू. सो वो सब इश्यूज जो है वो आप व्हेन यू आर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक शार्क टैंक इंडिया, तो देन वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, वो बैरियर ब्रेक हो गया हमारे लिए. तो पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस बिकॉज दे हैव सीन कि हमने इतना ऑलरेडी हम इतने पेरेंट्स को रीच कर चुके हैं. उन्होंने देखा कि हमने अपने एक वन ऑफ आवर लिटिल बेबीज केम ऑन द शो, शोड सम मिरेक्युलस स्टफ, एंड ये देखने से वो ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी बिल्ड हो जाता है. एंड वी एज आई ऑलवेज से वी आर पेरेंट्स फर्स्ट. सो मी एंड माई वाइफ वी आर द फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, बट वी आर पेरेंट्स फर्स्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स सेकेंड. तो हम ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं और करते भी नहीं है जो कि जिससे बच्चे को कोई भी तरह का 1% का भी चांस हो जिसमें उसको नुकसान हो सके या कुछ खराब हो सके उसके लिए. सो वी विल डू एवरीथिंग दैट वी विल डू फॉर आवर किड and we do that for the rest of the world. So I think that is one thing that Shark Tank India was able to help us with. Got it. Great. So, I read about you and got to know that before Raising Superstars, you were running a logistics startup.
Now, from a logistic startup to raising superstars, how does this shift happen? Yeah, you are right. I was running a transport technology enabled transport company, and I did that for 5 years. I got into it because my family has been in transport for quite a long time. Now, why I got into parenting and education is because जब when I became a father, my son was born, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए. एंड इसका अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे तो मैं इसका एक थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ कि क्या हुआ. सो you know that I was fortunate enough to Stanford University, जहाँ से मतलब वर्ल्ड के सारे बड़े कंपनी स्टैनफोर्ड से आए, राइट? whether it is Snapchat, Instagram, Google, HP, मतलब Yahoo, all of these companies, Tesla, etc., right? So I was always surrounded by very smart kids at Stanford. Even in India, I went to a school in Delhi, जहाँ से मेरे क्लास से there were मतलब 5 जन टॉप 100 IIT के रैंकर्स थे मेरे क्लास से. 5 IIT रैंकर्स फ्रॉम टॉप 100, नॉट इवन कि 5 जन का एडमिशन हो गया. सो आई वॉज सराउंडेड बाई दीज किड्स एंड आई यूज टू ऑलवेज फील कि भाई यार मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ाई करता हूँ, पर इन लोग इतना ज़्यादा मेहनत किए बिना इतना आगे कैसे निकल जाते हैं. एंड नॉट जस्ट इन स्टडीज़ बट कोई स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई मतलब म्यूज़िक में आज तक ज़्यादा कुछ किया नहीं पर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर नया पिकअप किया तो बजाने लगे. सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग. तो मैं इसमें रिसर्च किया और मुझे क्या पता चला कि अगर आप जो बचपन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और जो आप बचपन में करते हो, अगर आपने बचपन में अपना एबिलिटीज़ डेवलप कर लिया तो वो एबिलिटीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह जाएगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है या म्यूजिक में अच्छा होता है या स्टडीज़ में अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 साल से दूसरा साल में गया और अच्छा हो गया. वो पूरा लाइफ अपना म्यूजिक अच्छा गाता है, वो पूरा लाइफ अपने स्पोर्ट्स में अच्छा है, राइट? सो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब मेरा बच्चा हुआ 4 साल पहले, मैंने डिसाइड किया कि मेरा बच्चा को मैं ये सब अपॉर्चुनिटीज़ बचपन से दूंगा सो दैट आगे जाके वो स्ट्रगल नहीं करे, वो आगे जाके उसके लिए काफ़ी आसान हो जाए. एंड मैंने अपने बच्चे के लिए ये सब चालू किया था. एंड धीरे धीरे करके वी सॉ लॉट ऑफ अमेजिंग रिजल्ट्स इन माय ओन किड एंड वी स्टार्ट शेयरिंग इट विद आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली, एंड धीरे धीरे करके इट जस्ट बिकेम अ बिग थिंग बिकॉज वी वर एबल टू क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स in babies. And we are also the first and the largest in the entire world to bring such a product in an easy manner and digital manner. So that also helped. Great. So, Raghav, please tell us more about Raising Superstars. के आपके अभी के plans क्या हैं और future plans क्या हैं इस Raising Superstars को लेकर? Raising Superstars, जैसे मैंने कहा, राइट, इट वर्क्स ऑन द फिलॉसफी कि अगर आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ देते हो तो उनका स्किल्स और उनका टैलेंट्स उभर सकता है. सो आवर फिलॉसफी इज दैट help your child realize their true potential, right? Awaken the talents that they were born with. These are the things that we try to do, and there is a lot of science behind it. There's a lot of evolutionary reasons behind why it happens at early childhood and not later. तो रेजिंग सुपरस्टार्स में हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, so they can come on our platform, on our website raisingsuperstars.com and buy our programs. तो हमारे programs में we give parents some activities जो कि and it's a completely like done for you system. आप आइए, हम आपको बताएंगे कि आपको अपने बच्चे के साथ आज क्या करने का है. It will only take 5 minutes of your time on a daily basis. तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी busy हो तो आप घंटों लगाएंगे, ऐसा नहीं है. Completely screen free. तो आप बच्चे को ऐप नहीं दिखा रहे हो, हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि आपको क्या करने का है बच्चे के साथ आज 5 मिनट के लिए. वो आप करिए जाके बच्चे के साथ और धीरे धीरे आपका बच्चा सारे फील्ड्स में अपना डेवलपमेंट एबिलिटीज़ डेवलप करेगा. फॉर एग्जांपल फिजिकल एबिलिटीज़, आपका बच्चा क्रॉलिंग बहुत जल्दी करने लग जाएगा, वॉकिंग बहुत जल्दी करने लग जाएगा, रनिंग बहुत जल्दी करेगा. इंटेलिजेंस, तो आपका मेमोरी डेवलप होगा, लॉजिक डेवलप होगा,
म्यूजिक, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, टैंट्रम्स कैसे कंट्रोल हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम where we develop demonstrable skills जो कि आप देख के बोल सकते हैं हाँ यार मेरा बच्चा इतना जल्दी बात करने लग गया. लैंग्वेज स्किल्स, मेरा बच्चा का मेमोरी इतना अच्छा कैसे हो गया. Those kind of things we do with our platform. Right, so Wrong. This Raising Superstar platform is more for the parents, right? Okay, you are going to give them some task to do with their kids, right? For the parent, it is for Raising Superstars is a platform for parents who have young babies and toddlers and kids. तो हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं. मतलब कि बच्चा स्क्रीन कभी नहीं देखेगा, बच्चा मोबाइल ऐप नहीं देख रहा है, बच्चा कंप्यूटर नहीं देख रहा है, पेरेंट देख रहे हैं. और 5 ही मिनट देना है पेरेंट को हर दिन. ऐसा नहीं है कि आप घंटों लगा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. बच्चा रोते रहेगा, आप अपना भी काम कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो. तो मोस्टली वी हैव अबाउट 70-75% मदर्स हु आर ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बट 25 से 30% फादर्स भी हैं जो कि बहुत इन्जॉय करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से आया, मुझे क्या करने का है बच्चों के साथ, मुझे मालूम नहीं है, आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडिया. सो आई विल नॉट ओनली गिव द आइडिया कि आपको क्या करना है, पर आप वो जब करोगे 5 मिनट तो आपका बच्चा आपको कुछ करके दिखाएगा, विच विल डेवलप दैट टैलेंट एंड दोज टैलेंट्स विल स्टे विथ देम फॉर लाइफ. Got it. So, see, as we all know that this show, the Shark Tank India, doesn't help you just with the funding, but also help you in branding, right? So, before Shark Tank India and after Shark Tank India, how sales have improved for you? Sales have improved, no doubt, but I would say that the total value of Shark Tank India in terms of sales for us is not a huge amount. Because हम market में already we were at a stage where a lot of young parents already knew us, because we were the first in the market, and we've already been doing a lot of publicity and ads, and we already had 100,000 parents who had done our programs. So there was a lot of word of mouth. But what Shark Tank India did for us is showcased our product on a national platform, जहाँ पे घर घर में लोग देख रहे हैं वो शो, और घर घर में हमारा प्रोडक्ट पहुंचा, और ऑल्सो वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ. जो कि अगर आप एक फेसबुक पे ऐड देख रहे हो या कहीं और ऐड देख रहे हो तो वो लगता है अरे यार ये क्या है, ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है. पर जब आप नेशनल टीवी पे आके बता रहे हो और देख रहे हो कि बच्चा ऐसे सही में कर रहा है, देन यू नो कि अच्छा नहीं ये सही है. और इसमें वैसे भी हमारे प्रोग्राम में वी हैव फुल मनी बैक गारंटी फॉर द इंट्रो प्रोग्राम. तो इट्स लाइक रिस्क फ्री, बट इट हेल्प्ड अस एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट. If I got you right, the Shark Tank India basically build credibility and trust in people for you. Absolutely, and a little bit of increase in sales as well, but not like कि क्योंकि हम मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जिस्टिंग बेस काफी बड़ा ऑलरेडी था, तो इसलिए वो 10 गुना 20 गुना हो गया, वैसा नहीं. Okay, got it. ठीक है. All right. So, you have been into entrepreneurship since last, I guess, more than 5 years, right? So, as an entrepreneur, what was your lowest and highest moment in your entire startup journey? So, honestly, ये मैं मतलब ये इट्स अ क्लीशे, सब यही बोलते हैं, पर ये एकदम 100% सच है. जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका लो एंड हाई दिन में 50 बार होता है. कोई एक मेल आ गया और अब लो हो गए, कोई किसी ने बोल दिया अरे यार मेरा बच्चा देखो कितना सही कर रहा है, थैंक यू सो मच, और यू आर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वाओ यार मतलब क्या मैं हमारा प्लेटफॉर्म इतना लोगों को पॉजिटिविटी पे फैला रहा है. सो इट हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस. ऐसा कोई एक मोमेंट इज वेरी हार्ड टू से कि अरे वो मोमेंट में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशन, सब यही बोलते हैं. पर मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम 100% ट्रू है, क्योंकि आप इतना सारा चीज़ चल रहा है, राइट? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट a global brand, you are trying to make a massive difference, so you are reaching out to so many customers, so many investors. कोई नहीं बोल रहा है, कोई हाँ बोल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ डिले हो रहा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी भी ग्रो करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा डिले होएगा, थोड़ा मतलब कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो इट गोज ऑन हैपनिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस.
So, all right, one more question related to this only. What kind of advice do you have for young entrepreneurs who are just starting up? I would say that if आजकल स्पेशली आजकल क्या हो रहा है कि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि ये कंपनी ने हजारों करोड़ का बिजनेस कर लिया, इतना वैल्यूएशन पे पैसा उठा लिया. A lot of people get drawn to that कि यार मैं भी कर सकता हूँ, वो किया तो मैं भी कर सकता हूँ. But I would say that if you are in it for valuation and money कि हम इतना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, then you will never be successful. You have to be very passionate about the problem that you are trying to solve, right? So the advice that I would give is pick a very very large problem. Very large problem मतलब not कि कोई बहुत difficult mathematics का equation है. Very large problem मतलब कि जिसका बहुत बड़ा market है. Like education, transport, healthcare, all of these are huge markets. Everybody needs it, right? Now pick a large industry with a large problem and get married to the problem कि यार ये problem मुझे solve करना ही है, मैं कैसे करूँगा. And if you're very passionate about the problem, you will succeed. But so I was saying that the other thing here is that you should not become passionate about the solution. You should become passionate about the problem. कि मतलब solution आपने decide किया कि ये जो product मैंने बनाया यही solution है और customer आपको बोल रहे नहीं ये solution नहीं है, तो आपने problem तो right pick किया पर आप solution के पीछे passionate हो जाओगे तो you will not be able to solve it. So yeah, I think that is what I would say. Add here कि large problems here means कि problems faced by lot of people, right? And yes, lot of people, and also where they would part with their money to give to you, right? Because a lot of times there are problems that you can solve, but people don't want to pay for it. So entrepreneurship में we say that there are two types of problems. One जिसका सोल्यूशन होता है पेन किलर. आपको अगर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर, आपको कोई भी मतलब प्राइस लगेगा, पेन किलर आप ले लोगे, यार दर्द मेरा गायब हो जाए. दूसरा है कि दूसरा बोलते हैं हम लोग विटामिन. तो विटामिन सी ले लो यार, उसे कुछ नहीं होने का है. आपको भी पता है, मुझे भी माना ठीक है, मतलब ले लेते हैं, डॉक्टर बोल रहा है ले लेते हैं, पर कोई भी आपको अगर पेन हो रहा है आप बोलो विटामिन सी ले लो, मैं तो तेरे को मतलब 500 रुपया चार्ज करूँ. विटामिन सी से मेरा दर्द नहीं जाने वाला है. सो यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम वेयर द सोल्यूशन इज अ पेन किलर, नॉट अ विटामिन विच इज की हाँ गुड टू हैव, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, बिकॉज पीपल विल नॉट वांट दैट सो मच. Got it. All right. So my last question for you is people who are planning or maybe who plan to go to the next season of Shark Tank India, any advice to do better in the show? See, you have been there in the show, you know A to Z what happens over there, so you will be better to tell them कि क्या करना चाहिए. So I'll let out the secret then. Shark Tank India का secret मैं बता दूं क्या फिर? Shark Tank India has two goals. First goal is it's a TV show. ठीक है, their goal is not कि मैं entrepreneurship को इंडिया में बढ़ाऊंगा. फर्स्ट गोल इज कि इट इज़ अ टीवी शो, लोगों को देख के मज़ा आना चाहिए. और लोगों को मज़ा कैसे आएगा कि कुछ उन लोग सीख भी रहे हैं और कुछ ड्रामा भी चल रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, राइट? सो इट हैज़ टू मेक फॉर गुड टीवी, विच इज़ वाई यू सी कि बहुत फूड्स का प्रोडक्ट आएगा, बहुत D2C मतलब कंज्यूमर ब्रांड्स आर फीचर्ड देयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग, बट दैट इज द चैनल्स ऑब्जेक्टिव. The second objective is that there are sharks on the other side and they are putting in their own money, real money, and it is completely unscripted. So they are, अगर सोनी इंडिया उनको बहुत बेकार कंपनी अगर भेजेगा और उनका टाइम बर्बाद करेगा, so they'll be like what the hell, मतलब मेरा आप लोग मुझे अच्छा डील नहीं दोगे तो हम लोग आएंगे ही नहीं शो में. हम लोग अपना बिजनेस छोड़ के आ रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा. So they want कि बिजनेस में भी मतलब it has to have value, it has to have some merit, only then they should come into the time. So Sony will balance both. It has to make good TV, but business में दम होना चाहिए, जो कि मतलब शार्क्स को इंटरेस्ट आए तो शार्क्स तो गुस्सा हो जाएंगे. हाँ, काफी भी.
इस पे काफी मीम्स भी बन रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे हम इन्वेस्टर पिच करते हैं, राइट, लाइक वी आर अ टेक कंपनी, वी आर अ टेक पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म, राइट। सो हम जब अपना इन्वेस्टर पिच करते हैं रेगुलरली, लाइक नॉट इन शार्क टैंक, तो वी जस्ट हैव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दिया, मोबाइल का ऐप का डेमो दे दिया और बता दिया। पर शार्क टैंक इंडिया में जब जाओगे तो वो पूछेंगे अच्छा आप प्रॉप्स क्या यूज करोगे, तो देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। आई एम लाइक प्रॉप्स क्या होता है क्योंकि हमने तो कभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रॉप्स नहीं यूज किया। अच्छा, पर प्रॉप्स तो यूज करने से अच्छा रहेगा। सो दे डिडंट टेल मी कि यू हैव टू यूज प्रॉप्स, बट आई एम थिंकिंग अच्छा हाँ प्रॉप्स यूज करेंगे तभी ना लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तो तभी लोगों को समझ में आएगा। तो हमने फिर वो ब्रेन का प्रॉप्स बनाया, देखो ऐसे होता है, वो समझाने के लिए। तो वो सब दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। So basically, while presenting your pitch, you have to be a little creative. You have to be creative so that it impresses the audience and it impresses the judges as well. And also it works for you because when you are creative, then you are able to explain your concept, your idea, your product, your company better also. क्योंकि visually आप sensorily देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, सिर्फ सुन रहे हैं तो हो सकता है उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। Got it. So Raghav, one parting thought. Parting thought, no. So I would say that it was amazing experience with Shark Tank India, and if you have a child if you have a baby who's 0 to 2 years old, definitely do try our product. You can go to raisingsuperstars.com and try it, and let us know how it goes. Anybody who wants any kind of help, suggestion, advice, that collaboration that they want to do with us, most welcome to ping me, and we will try to do what we can.